Hello, everyone, and I welcome to third webinar of the series hosted by SPIC. And today's webinar is on web application development with PHP. Now, I think the most of the students are from the IT background. They must be thinking, why PHP? PHP is quite common, nothing new about it. But let me share with you some interesting facts about PHP platform. PHP is by far the most used language to develop websites. Even today, more than 50% of websites you see on internet is developed on PHP platform. And there is a good demand for PHP developers worldwide. And if you are good at PHP, you can start earning from tomorrow. So that's the power of PHP. So now, since we have conducted, three more webinars. We've been doing this webinar from 28th of April. So now, since today we have a lot of students from GCG 11 and Chitkara and CGC new students. So let me first, give you a brief about this SPIC. Now, this SPIC organization is basically the full form of the SPIC is Society for Promotion of IT in Chandigarh, which is under the Department of Information Technology, Chandigarh Administration. It's basically a technical arm of Department of IT. And SPIC has been established by Chandigarh administration way back in 2001 with a mandate to implement all the IT policies of Chandigarh administration. Now, since then, SPIC is playing a very, very pivotal role in executing all the e-governance project of Chandigarh administration. Now, there are a lot of students who must be from Chandigarh. They might have heard about Sampark Center and they might have visited Sampark Center. Now, all these Sampark centers are, been managed by SPIC. SPIC is running all those Sampark Center, and the ERP solution which is being used by the Sampark centers is developed in-house by SPIC. Now, apart from that, we are into development of web-based solution, ERP solution, mobile application development, technical consultancy, networking and database management solutions, and providing technical manpower to the government sector. So now, one of the mandate is also to create talent pool for the IT industry, IT industry in the Tri-City. That's why we do a lot of human development activities. Now, under which we are conducting, we've been conducting high-end training programs, high-end training courses to students and IT professionals since 2001. And apart from that, we are also running a state-of-the-art incubation center where we nurture young entrepreneurs and startup companies by giving them infrastructural support and conducive environment to grow. We have a state-of-the-art facility, 1.5-acre facility in Chandigarh Technology Park in plot number 20 next to Infosys campus. So now, the mandate of providing the talent pool and the mandate for creating an ecosystem for the startup companies is really helping us, because we have developed a training module where every trainee get to work on live projects. They also get to work with these startup companies who are using latest technologies and adopting best practices in developing the applications. So now, friends, as you know, due to the outbreak of COVID-19, regular conventional classes has been suspended. All of you are now attending classes from your home, from the comfort of your home. So it has some advantages also, some disadvantages also. The advantages are that you are able to concentrate more during your classes, and the disadvantage is that you don't get to go out. Okay, so now, keeping that in mind and filling that gap, SPIC has launched its virtual classroom training portal. Now, through this virtual classroom training portal, we are offering all our IT courses through our virtual classroom learning solution. For that, we have tied up with Cisco, and we are using their WebEx training solution, which is one of the world best solution available. Okay, and I think this virtual classroom is the way forward during this coronavirus. Now, getting on with the the webinar on PHP,
I would now introduce Mr. Gusharan Singh, who will take the webinar on PHP and who has more than 15 years of experience in his field. And he's an excellent faculty of PHP. Now I would request Gusharan to start the session. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Welcome to this webinar session. Before starting this session, I would like to introduce myself. I'm Gurcharan Singh, and I'm working in SPIC from the last 11 years as a faculty member. Today, we will discuss about the web application using PHP. In daily life style, we can't imagine our life without web application or mobile application. But today, as we have limited time, so we will discuss only about the web application. About the mobile application, we will discuss later in another webinar session. So let's start with what is web application. Web application is a computer program that utilizes a web browser and web technology to perform tasks over the internet. For example, share market, online shopping, even you can check your university or board result online also. With the help of web application, we can pay our bill, transfer funds, and we also book type of ticket like flight, train, bus, movies, etc. See, रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग अपनी बहुत सारी वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, लाइक ऊबर हम यूज करते हैं, जोमेटो यूज करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो चुके हैं. अब इसके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो इवन कोविड क्राइसिस हम लोग और अच्छे से इसकी एडवांटेजेस को हम समझ पाए हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये वेब एप्लीकेशन और मोबाइल डेवलपमेंट. तो वी मस्ट नो हाउ टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, राइट? Web application is a computer combination of server-side scripting language to handle the storage and retrieval of the information, and client-side scripting language to present the information to users. For web application, we must know some skills like HTML, client-side scripting language, and server-side scripting language. See, HTML and client-side scripting language are common, but in the server-side scripting language, we have number of options like PHP, ASP, ASP.NET. So, which scripting language is the best one for the development? क्या है, कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, इसको सेलेक्ट करना, इसको डिसाइड करना बहुत जरूरी है. इसको डिसाइड करना मार्केट के ऊपर या अपनी कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये डिसाइड करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट. तो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचपी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. आज के एजेंडे के अंदर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करना है, लाइक व्हाट इज पीएचपी, व्हाई पीएचपी इज यूज्ड, पीएचपी हिस्ट्री, पीएचपी शेयर्ड एंड डेवलपमेंट, टुडे वेबसाइट्स डेवलप इन पीएचपी, टॉप कंपनीज पीएचपी कौन सी यूज कर रही हैं, व्हाट इज फ्रीलांसिंग. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है. आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, और अगर नहीं जानते तो आज जानना बहुत जरूरी है. हाउ मच पीएचपी डेवलपर अर्न. आफ्टर ऑल हम लोगों को अर्निंग करनी है एक डिग्री के बाद, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट शुड लर्न फॉर द पीएचपी डेवलपमेंट, पीएचपी कोडिंग लेवल, कोडिंग एग्जांपल्स एंड वेब होस्टिंग, राइट. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी इज अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. It is used to develop dynamic web application. The developer allow to web developer to create dynamic websites that interact with the database. मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है, और डेटा जो भी आपका रूटीन लाइफ के अंदर बहुत सारी आप वेबसाइट्स आप लोग रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, लाइक सोशल मीडिया हो गया, और Amazon हो गया, शॉपिंग साइट्स होगी, तो कौन सा आपने ऑर्डर प्लेस किया है, कौन सी आपने कमेंट किया है, किस पिक्चर को आपने अपलोड किया, तो ये सारी कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंदर सेव हो रही है. तो जो बेसिकली पीएचपी का जो रोल रहता है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, राइट. नेक्स्ट, इसका जो फर्स्ट नेम था ये पर्सनल होम पेज था. नेक्स्ट, अभी इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर से जानते हैं. वेयर इज बिल्ट इन फंक्शन अलाउ for the faster development, structurally similar to C++.
Each PHP scripting must be enclosed in reserved PHP tag. इसके कुछ और ऑल्टरनेटिव भी है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं क्लियर करूंगा। थोड़ा सा और इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज PHP यूज्ड। My first point is PHP is open source and it is totally free. Open source software is a software with source code. That means anyone can inspect, modify, enhance the source code. मीन आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस आपके पास अलाउ हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, it is totally free, which means anyone can download PHP from internet. No kind of renewal charges are taken after downloading the PHP. इसके अंदर आपको कोई भी चार्जेस, आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस, कोई डाउनलोडिंग चार्जेस आपको नहीं देना है, टोटली फ्री। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यहाँ पे लाइसेंस फाइल नहीं करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। PHP को आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, iOS। अब यहाँ पे आप में से कई लोग के पास एप्पल का लैपटॉप होगा, कईयों के पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि विंडो वाला सोचे कि मैं PHP कर पाऊंगा कि कर पाऊंगा, iOS वाला सोचे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, कोई भी यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड रेंज फॉर सपोर्टिंग डेटाबेसेस। हमारे पास अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बैकएंड यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल SQL सर्वर, ओरेकल, पोस्टग्रेस, माईस्क्वल। तो इनमें से किसी भी बैकएंड को हम यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, राइट। कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हमारा क्लाइंट या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डेटाबेस हमको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। ऐसे कोई लिमिटेड नहीं है यहाँ पे कि एक ही पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट है, तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ PHP। स्कोप क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर वन इज वेबसाइट। किसी भी तरह की वेबसाइट को हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, आप जनरेट करना फेसबुक की तरह से एक सोशल मीडिया साइट बनाना चाहते हैं, कोई न्यूज चैनल की साइट बनाना चाहते हैं कि शॉपिंग। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज ई कॉमर्स एप्लीकेशन। आपने अगर सपोज अपने ट्राई सिटी को लेके आपने एक शॉपिंग कार्ड बनाना है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट हैं, तो इस तरह की एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं। Next one, enterprise software. Enterprise software is also known as enterprise application software. Enterprise software is used to satisfy the need of an organization rather than the individual. अब एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रख के बनाई जाती है। आप में से कई लोग होंगे जिनके रिलेटिव या पेरेंट्स कुछ बिजनेस करते हैं, राइट। उनको हैंडल करने के लिए भी आप वो एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बिजनेसेस का टाइप, जैसे सपोज आपने किसी क्लब को ज्वाइन कर रखा, तो क्लब को हैंडल करने के लिए एक एप्लीकेशन आपने बना दी। सेकंड क्लब के अंदर आपकी एप्लीकेशन का रेफरेंस जाता है, तो आपको दोबारा से वो एप्लीकेशन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसको आपने क्या करना है, उनके डोमेन पे अपलोड करनी है। तो आपका क्या होगा, सेम डेवलपमेंट कोड आपका दूसरे एंड पे डेवलप एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो एक ही डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर क्या होगा आपका कि आप मल्टीपल प्लेसेस के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। इसको हम आगे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री क्या है, कितनी पुरानी है। तो PHP आपकी फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1995 के अंदर हुई थी। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय रॉसमस लर्डॉफ। बेसिकली ये कैनेडियन पर्सन है और इन्होंने PHP डेवलप की थी। 2003 के अंदर इनको एक अवार्ड भी मिला है MIT टेक्नोलॉजी की तरफ से, दैट इज वन ऑफ द टॉप 100 इनोवेशन इन द वर्ल्ड अंडर द एज ऑफ 35। तो इन्होंने हमें 1995 के अंदर PHP हमको दी थी। और PHP अब आपको लग रहा होगा 1995 में आई है कि इतनी पुरानी हो चुकी है, तो जैसे आपको संदीप सर ने बताया है, तो मैं भी आपको यहाँ पे डिटेल में विद फैक्ट्स आपको बताऊंगा। बट उससे पहले रिलीजिंग हिस्ट्री, वर्जन कौन कौन से, राइट। तो 8 जून 1995 को इसका फर्स्ट वर्जन पब्लिक रिलीज हुई थी और लेटेस्ट वर्जन 28 नवंबर 2019 को 7.4 वर्जन फॉर्म के अंदर हमको मिला था। इसके अंदर एक आपको पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है कि इसका 6th वर्जन रिलीज नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ नेटिव यूनिकोड। यूनिकोड की सपोर्ट नहीं मिल रही थी वहां पे, तो उस रीजन से उन्होंने 6th वर्जन लॉन्च ही नहीं किया। फिर उन्होंने 7 के अंदर इसको डाल के इसको लॉन्च किया।
ये इसकी हिस्ट्री है जी। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर देना जरूरी है कि 1995 के अंदर इतनी पुरानी पीएचपी हो चुकी है, तो मार्केट में आज स्टैंड करती है कि नहीं करती, तो उसके कुछ फैक्ट्स के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाते हैं। शेयर्ड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी सर्वे एक वेबसाइट है जहां पे पूरी एंटायर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी का सर्वे किया जाता है। मींस कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी स्टैंड कर रही है, कितने परसेंटेज कहाँ पे, कौन सा सर्वर चल रहा है, कौन सा ब्राउजर चल रहा है, तो आप यहाँ पे इस साइट पे जरूर जाइए w3tax.com। इस साइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू w3 डेटा PHP is used 78.9%। थिंक अबाउट इट गाइस कि कितनी बड़ी परसेंटेज ये साइट हमको बता रही है और ये सर्वे दे रही है कि हमको यहाँ पे PHP कितना परसेंट यूज हो रही है। इसके पहले ASP 10.6% है, जावा 3.5 है, रूबी 3.5 है। ये पॉइंट आपको बड़ा अच्छा हेल्प करेगा। कई बार स्टूडेंट्स हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस हमें करनी है, PHP करनी है, ASP करनी है। तो इस फैक्ट्स के साथ आप गूगल कर सकते हैं, आप फैक्ट्स कर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी मार्केट के अंदर लैंग्वेज चल रही है। तो 78.9% के साथ PHP नंबर 1 पे स्टैंड कर रही है। इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम यहाँ पे। रैंकिंग वाइज अगर हम समझने की कोशिश करें तो रैंकिंग के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे PHP ही स्टैंड कर रही है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बताया। तो 78.9% आपकी यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग पे स्टैंड कर रही है। अगर हम टॉप वेबसाइट्स की बात करें, टॉप 10 लाख वेबसाइट्स की बात करें, जो कि ग्रीन कलर के अंदर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो 77.7% पे यहाँ पे स्टैंड कर रही है। ऐसे करते करते अगर हम टॉप 1000 वेबसाइट्स के ऊपर बात करें तो 59.5% पे PHP स्टैंड कर रही है। दैट मीन्स 590 वेबसाइट आउट ऑफ 1000 वेबसाइट्स आपकी PHP की वेबसाइट है। बाकी रेस्ट 41% 410 वेबसाइट्स आपकी रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो यहाँ पे कितना बड़ा शेयर है PHP का, ये आप स्टैंड करिए, समझिए कि 1995 के अंदर आने के बावजूद भी अभी भी मार्केट के अंदर कितनी अच्छी चल रही है। और यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वेबएक्स जिसके थ्रू हम यहाँ पे आज जुड़े हैं, प्लेटफॉर्म प्लस हम लोग, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ स्पेक, वो दोनों, उन दोनों की वेबसाइट्स PHP के अंदर हमने बनाई, राइट। सॉरी, वेबएक्स हम लोगों ने नहीं बनाई है, तो स्पेक इंडिया हमने बनाई है। ये वेबसाइट PHP के अंदर बनी, राइट। नेक्स्ट वन, टॉप वेबसाइट्स डेवलप इन PHP। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 1000 वेबसाइट्स के अंदर 590 वेबसाइट्स PHP के अंदर डेवलप हुई हैं। तो कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको रूटीन लाइफ के अंदर हम एक्सेस करते हैं? तो उनमें से फर्स्ट फेसबुक है। फेसबुक PHP के अंदर डेवलप हुई है और इसके अंदर 2.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। इतना बड़ा यूजर मेंटेन कर रही है ये साइट, दैट मींस आप सोचिए कि कितनी पावरफुल होगी, राइट। नेक्स्ट वन इज याहू। याहू के अंदर, याहू भी एक आपकी PHP के अंदर डेवलप हुई है। 227.8 मिलियन एक्टिव यूजर है इसके। नेक्स्ट वन इज विकिपीडिया। आप लोग जानते हैं सबसे बेस्ट वेबसाइट है, अगर आपने कुछ जानना है तो। मतलब अमेरिकन सोशल साइट है आपकी, इसके अंदर ये आप PHP के अंदर डेवलप हुई है। इस तरह से बहुत टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स हैं जो कि PHP के अंदर डेवलप हुई हैं और हो रही है। My next point is top companies development companies in India. इंडिया के अंदर कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो कि PHP को यूज कर रही हैं? उसमें से फर्स्ट वन इज इंडिया लिक इन्फोटेक, हिडन ब्रेन, नेक्स्ट सॉल्यूशन, स्पार्क IT सॉल्यूशन, सेफन। ये टॉप 5 कंपनीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं जो इंडिया के अंदर PHP के अंदर डेवलप कर रही हैं। और यहाँ पे कॉस्ट पर डेवलपर, ये कंपनी कॉस्ट पर डेवलपर $25 to $49 पर आवर अपने डेवलपर्स को पे करते हैं। आप इसको इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो चेक करिए आपके पास कितना बड़ा अमाउंट जनरेट होता है। तो ये फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते। नेक्स्ट वन, हाउ टू अर्न फ्रॉम PHP डेवलपमेंट। नंबर वन, एक टेक्नोलॉजी सीखने के बाद एक जॉब ऑप्शन तो सबके पास होता है। आपके पास क्या कोई और ऑप्शन भी है? यस, विद फ्रीलांसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, या आप हम में से कुछ प्रोफेशनल्स भी जुड़े हैं आज,
तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पीएचपी के अंदर फ्रीलांसिंग कैसे होता है, क्या होता है, राइट। डेवलप अ प्रोडक्ट एंड सेल इट टू मल्टीपल कस्टमर्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आप बनाइए, एक सपोज आप एक स्कूल के अंदर, स्कूल के लिए, स्कूल को हैंडल करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, एक कॉलेज को हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया, एक होटल को हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। सेकेंड टाइम आपकी अगर डिमांड आती है तो आपने उसको दोबारा डेवलप नहीं करना, आपने उसी को सेल करना, राइट। तो यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही सेव हो जाती है और आपका मार्जिन बहुत अच्छा बन जाता है। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया था 10 लाख का, दोबारा स्कूल से ऑर्डर आ गया तो वो 10 लाख आपको दोबारा प्लस हो गया, राइट। फ्रीलांसिंग क्या है इसको भी और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पे आपको एक सैलरी दिखाने की कोशिश की है, फ्रेशर टू सीनियर। ये एवरेज सैलरी है आपकी जो कि इंडिया के अंदर मिलती है। 3.2 से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है और अप टू 5 ईयर 21 लाख पर लाख आपको यहाँ पे सैलरी पीएचपी के अंदर मिलती है अगर आप पीएचपी के अंदर डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। फ्रीलांसिंग इज अ प्लेटफॉर्म वेयर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल कनेक्ट। Freelancing, which allows anyone can register as a client to post the job, and freelancer means developers can bid and compete it. अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने कोई मोबाइल परचेज करना है तो आप किसी शॉप पे या आप ऑनलाइन शॉपिंग से आप परचेज कर लेंगे। सपोज आप मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक मेरी एक हॉस्पिटल है उसको मेरे को कंप्यूटराइज करना है, तो उसका एक मेरे को सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो मेरे को यहाँ पे अपने रेफरेंसेस के अलावा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बनवा सकता हूँ? तो मेरे पास फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है कि एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप कर, राइट। अब फ्रीलांसिंग के अंदर यहाँ पे जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे आपको कोई भी रजिस्टर करके आपने एक प्रोजेक्ट अपलोड किया, रिक्वायरमेंट अपलोड की, और जो डेवलपर हैं वहां पे क्या करेंगे, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करेंगे, मीन कितने के अंदर, कितने बजट के अंदर आप उस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग वापस एज ए क्लाइंट, जो एज ए क्लाइंट रजिस्टर्ड हुए हैं, उन वो क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे उस प्रोजेक्ट का कि इस बजट के ऊपर और इस एक्सपीरियंस पर्सन को ये हमने प्रोजेक्ट अलॉट किया। तो इस तरह से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं एज ए डेवलपर, एज ए फ्रीलांसर। हमारा यहाँ पे गोल आज फ्रीलांसिंग को एज ए डेवलपर समझना जरूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे को अपनी डेली जॉब या अपने कॉलेज को क्विट करने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं कि जॉब कब शुरू होगी, आफ्टर कॉलेज, राइट। तो कॉलेज के बाद शुरू होगी जॉब, बट यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं पैरेलल मोड में। सपोज कई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके लिए यहाँ पे फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे कॉलेज को या अपनी डेली रूटीन को सब करने की जरूरत नहीं है। आप पैरेलल मोड पे क्या कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग की जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में कौन कौन सी वेबसाइट्स पॉपुलर हैं या कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं? तो नंबर वन इज फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर, टॉपटेल, सिंपली हार्ड, पीपल पलार, 99 डिजाइन। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप फ्रीलांसिंग की जॉब को कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग कॉस्ट कैलकुलेशन, आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड के अंदर जैसे मैंने कुछ वेबसाइट्स के अंदर वेबसाइट्स के एग्जांपल्स लिए हैं, तो इसमें से अपवर्क का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी ये कॉस्ट एज ए फ्रीलांसिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं upwork.com पे जाके। आप upwork.com के अंदर जाके आप जस्ट सर्च करिए पीएचपी वर्ड से, तो पीएचपी वर्ड से जितने भी डेवलपर्स होंगे उनकी प्रोफाइल सामने आ जाएंगी और वो कितनी कॉस्ट पर डेवलपर वो ले रहे हैं पर आवर, लाइक कुछ 20 लेंगे, कुछ 30 लेंगे, कुछ 55 लेंगे, कुछ 45 लेंगे, कुछ 70 लेंगे। तो एक रेंज है, ये रेंज आपकी 20 to 80 के बीच काम करती है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। मतलब 20 और पर डॉलर या 80 और पर डॉलर यहाँ पे आपको पेमेंट मिलती है। एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए मैंने 20 और पर डॉलर मैंने लिया है मिनिमम, मिनिमम पे कैलकुलेट करते हैं और
अगर आप मैक्सिमम पे जाएंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट हो जाएगा, तो मिनिमम पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मिनिमम अगर हम काम करते हैं मिनिमम प्राइस पे, तो $20 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट मीन्स $80 पर डे एज ए पार्टनर, राइट। और उसको अगर मैं 25 डेज से मल्टीप्लाई करूँ दैट इज $2000 मंथली। और नेक्स्ट है, अगर उसको मैं इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो करीबन करीबन -30% करके, क्योंकि इसके अंदर अपवर्क का भी शेयर होता है। अपवर्क का शेयर जरूरी होता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में तो उसको क्या मिलेगा, तो ये आंसर है वहां पे कि वो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट का कुछ शेयर यहाँ पे वो लेता है। तो हमने मैक्सिमम ले लिया 30%, अगर वो हमसे ले रहा है तो 2000 के मल्टीप्लाई करते हैं 75 से और माइनस करते हैं 35, तो मोर देन 1 लाख रुपीज एज ए पार्ट टाइम आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है अभी, अगर आपके हाथ में स्किल्स हैं तो, राइट। अगर इसी चीज को हम 6 आवर और 8 आवर में कन्वर्ट करते हैं तो नियर अबाउट 1.5 2 लाख पर मंथ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं। और अगर उसको हम एनुअली कन्वर्ट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 नियर अबाउट 24 लाख मिनिमम स्केल पे। तो इतना बड़ा अमाउंट जनरेट हो सकता है यहाँ पे। सी आप लोग यहाँ पे एक जो एम है वो प्लीज जॉब मत रखिए। अगर यहाँ पे आप लोग फ्रीलांसिंग पे जाते हैं और उसके बाद आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो उसके अंदर बहुत बड़ा स्केल पे आप अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, चलिए हम लोग पीएचपी कर लेते हैं, राइट, मार्केट का ट्रेंड देखते हुए, फ्रीलांस को देखते हुए। तो सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर पीएचपी, कौन से पैकेज हमको चाहिए फॉर द पीएचपी डेवलपमेंट। तो नंबर वन इज, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है कि कई बार किसी के पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि आप में से कईयों के पास लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कईयों के पास लिनक्स होगा, कईयों के पास आईओएस होगा। तो यहाँ पे अब अगर मेरे पास विंडो है तो मेरे को मैम पे जाना चाहिए, लिनक्स है तो जाना चाहिए, अगर है मेरे को मैम पे जाना चाहिए। अब वैब की फुल फॉर्म क्या है, विंडोज, A for Apache, M for MySQL and P for PHP। की फुल फॉर्म क्या है, लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP, मैक, अपाचे, MySQL and PHP। एंड लास्ट जो कि मोस्टली रिकमेंड किया जाता है XAMPP, दैट इज फॉर द क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब सपोज मेरे पास अगर लिनक्स है या विंडो है, आज मेरे पास लिनक्स है, ऑफिस के अंदर लिनक्स है, पर्सनल लैपटॉप मेरे पास विंडोज का है, तो दोनों लैपटॉप के अंदर मैं XAMPP इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर XAMPP इजीली इंस्टॉल्ड हो जाता है, राइट। अब व्हाट शुड लर्न फॉर द पीएचपी डेवलपमेंट, मेरे को पीएचपी की डेवलपमेंट करने के लिए मेरे को क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो नंबर वन है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, AJAX, RDBMS एंड लास्ट वन PHP। अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं हम, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट द बेसिक्स, एंड बूटस्ट्रैप, jQuery, AJAX ये आपके एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको दोनों बेसिक्स और एडवांस दोनों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर आप इंडस्ट्री जो है वो दोनों मांगती है, बेसिक्स भी मांगती है और एडवांस भी मांगती है। तो वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, hypertext markup language is standard markup language for the document designed to display in the web browser। अगर आपने अपना कंटेंट को डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल फॉर्म के अंदर इमेजेस को फ्लैश करना है वेब ब्राउजर के ऊपर, तो आप यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेजेस जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को फॉलो अप करेंगे। इसमें टैग्स के थ्रू काम किया जाता है। हिस्ट्री बता दें आपको 1991 के अंदर HTML का फर्स्ट वर्जन आया था जो 18 टैग्स के साथ आया था, 18 टैग आए थे इसके अंदर। और उसके बाद इसके पॉपुलर दो वर्जन रहे हैं, HTML4 एंड HTML5। HTML4 के अंदर बहुत सारे आपके फ्रेम सेट, फॉर्म कंट्रोल्स, बहुत सारे मल्टीपल कंट्रोल टैग्स हमारे पास अवेलेबल है। HTML5 के अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग फीचर्स आएंगे, लाइक कैलेंडर, डेट, फॉर्म कंट्रोल्स कुछ नए आए थे इसके अंदर, लोकल सपोर्ट, स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे HTML4 और HTML5 के अंदर यही मेन डिफरेंस है। कुछ और भी डिफरेंस है बट हमारे पास शॉर्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पे मैं मेन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पैरेलली मोड पे एक XHTML भी चल रहा है,
XHTML क्या है? Extendable Hypertext Markup Language. XHTML is a combination of XML and HTML. It is used to display content on a web page, and it is must be marked up correctly with the tag, resulting in well-formatted document. इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया आपको, जैसे हम लोग कई बार जब कोड करते हैं, आपने कई लोगों ने HTML जरूर की होगी, तो कुछ जैसे टैग होते हैं हमारे पास HTML को हम कैपिटल्स में लिख दिया और कैपिटल स्मॉल में ऑफ कर दिया, तो स्टैंडर्ड नहीं है। और नेस्टेड कॉन्सेप्ट, आउटर को हमने लाइक डिवीजन टैग ऊपर ऑन किया बट उसको फॉन्ट टैग से पहले बंद कर दिया, तो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया बेसिकली, like number one, all element and attribute name must be in lower case. जितने भी एलिमेंट्स हैं और टैग्स हैं वो लोअर केस में डिफाइन होंगे। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी कोटेड, डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। डॉक टाइप डेफिनेशन जरूरी है, इसके बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। नेस्टेड कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली फॉलो अप करना पड़ेगा। एक एग्जांपल फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे आपको spickindia.com वी टैग के अंदर दिखाया है। यहाँ पे आउटपुट के अंदर लाइक www.spickindia इस तरह से आउटपुट आपको एक ब्राउजर के अंदर मिलेगा। तो मतलब HTML का जो रोल होता है वो बेसिकली कंटेंट को फ्लैश करना होता है, आउटपुट ब्राउजर पे देना होता है। नेक्स्ट वन इज cascading style sheet. Cascading style sheet is a simply mechanism for adding style like font, colors, spacing to the web document. अब होता क्या है कि HTML के थ्रू से हमने यहाँ पे कंटेंट तो अपना फ्लैश कर दिया, बट उसके अंदर एक स्टाइलिंग देनी है, डिजाइन इम्प्रूव करना है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे CSS के एट्रीब्यूट और सेलेक्टर्स की हेल्प से हम ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं। CSS के अंदर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लाइक एग्जांपल कोड के अंदर जैसे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रिपीट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, राइट। एंड बॉडी यहाँ पे क्या है, सेलेक्टर काम कर रही है, कहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे सेलेक्टर्स ऑप्शंस होते हैं लाइक आईडी, क्लास, चाइल्ड, इस तरह से हम बहुत सारे सेलेक्टर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। सेम आपको CSS आउटपुट के अंदर जैसे मैंने spickindia.com यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड्स के अगर कंपेयर करें तो वहां पे जो स्पिकिंडिया था वो सिंपल टेक्स्ट के अंदर लिखा था। यहाँ पे आप चेक करिए कि यहाँ पे शेडो आ चुकी है, कलर आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है, तो इस तरह से आपके लेआउट को हमने इम्प्रूव कर दिया, राइट। अब CSS के अंदर भी आपके पास कुछ वर्जन अवेलेबल हैं, कुछ CSS1, CSS2, CSS3 एंड लास्ट वन इज SAS। CSS2 एंड 3 के अंदर अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो CSS3 के अंदर मल्टीपल बैकग्राउंड की फैसिलिटी आ चुकी है। CSS एनिमेशन, अब छोटे छोटे एनिमेशन अगर आपने बनाने हैं तो आप में से शायद कोई फ्लैश जानता हो, फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम एनिमेशन बना सकते हैं, जिफ इमेजेस बना सकते हैं। अब वो काम आपको यहाँ पे CSS3 के अंदर आप कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट इफेक्ट, 3D ट्रांसफॉर्म, इस तरह का यहाँ पे आपने अगर इम्प्रूवमेंट देना है अपने कंटेंट को तो आप CSS के अंदर कर सकते हैं। लास्ट वन SAS की फुल फॉर्म क्या है? सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। ये बेसिकली मोस्टली यूज होती है मोबाइल डेवलपमेंट में, हाइब्रिड एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। SAS is the most mature and stable and powerful great CSS extension language in the world. ये आपकी बहुत ही इम्प्रूव्ड CSS है। इसके अंदर जो CSS एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है उसको एज ए डायरेक्टिव आप डिफाइन कर सकते हैं, नेस्टेड इंक्लूड कर सकते हैं, नेम स्पेसेस डिफाइन कर सकते हैं, रेफरेंसेस सिंबल डिफाइन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, बट आप लोग वेब एप्लीकेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर नेस्टेड कॉन्सेप्ट लाइक XHTML की तरह बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका है प्रॉपर, क्योंकि CSS के अंदर टॉप डाउन अप्रोच डिफाइन की जाती है। सपोज आपने एक CSS के अंदर डिफाइन किया एक डेफिनेशन एक सेलेक्टर की हेल्प से, उसके बाद दूसरा आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आप लिंक अप नहीं कर रहे हैं। अगर आप पेरेंट और चाइल्ड अगर आप नेस्टेड कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं तो CSS आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो CSS का मेन रोल क्या रहता है? आपके डिजाइन को इम्प्रूव करना, कंटेंट को इम्प्रूव करना, लाइक टेम्पलेट डिजाइन करना, राइट। नेक्स्ट, JavaScript is a scripting language used to create and control dynamic website content, anything that moves, refresh or otherwise changes on your screen. अब यहाँ पे JavaScript का जो रोल रहता है वो आपके लॉजिक्स
को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सपोज आप यहाँ पे कोई इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, like आप एक इमेज बैनर के अंदर इमेज रोटेटिंग इमेज दिखाना चाहते हैं, तो वो अगर आप करना है तो वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। वो आप सीएसएस से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इफेक्ट्स कर सकते हैं, बट वहां पर जावास्क्रिप्ट का कंपैरिजन नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर बनेंगे। क्लाइंट साइड वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि यहाँ पे सर्वर तक जो कंटेंट जो डेटा ट्रांसफर होगा उसको वैलिड करना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक लॉगिन फॉर्म बनाया और उसमें एम्प्टी वैलिडेशन नहीं लगाई और लॉगिन पे क्लिक किया, तो आपका जो वो रिक्वेस्ट है वो सर्वर चल जाएगी, जबकि आपको पता है कि वो लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं डाले। तो इसको अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, राइट। देन एजेक्स नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर एजेक्स रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपको दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। नंबर फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज इवेंट्स। मतलब फंक्शन मीन्स जहां पे आप जितना जो लॉजिक आप डालना चाहते हैं वो उसको आप फंक्शन के अंदर डालेंगे, और इवेंट मीन्स जिसपे आप प्लग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्लिक करने पे आपने वेरीफाई करना है कि फॉर्म इज वैलिड और इनवैलिड, तो वो आप यहाँ पे इवेंट के साथ चेक कर सकते हैं। तो लाइक ऑन क्लिक, माउस मूव, ज्यादा इवेंट, राइट। तो जावास्क्रिप्ट आपकी किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज बूटस्ट्रैप। Bootstrap is a free and open source CSS framework directed to responsive mobile first front end web development. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना जरूरी है कि Bootstrap क्या है। Bootstrap is the most popular CSS framework for development responsive and mobile based websites. अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप CSS के अंदर जाते हैं तो CSS के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट डिजाइन करना है, बट वो डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं होता। अब रिस्पॉन्सिव मीन्स कि आपके पास आपने एक वेबसाइट बनाई तो कभी आप उसको लैपटॉप, कभी आप उसको टैबलेट और कभी आप उसको मोबाइल के अंदर ओपन करना चाहते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि आपको तीन अलग डिजाइन डेवलप करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट एंड सेलेक्टर्स। यहाँ पे आपको कुछ एडवांस, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क मतलब यहाँ पे इनबिल्ट लाइब्रेरी क्लासेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप उन्हीं फंक्शंस क्लासेस की हेल्प से आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। फिर वहां पे आपको कुछ बेसिक्स पे काम करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक प्री डिफाइंड क्लासेस मिलती है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये आपकी क्या है, बूटस्ट्रैप की थीम से। अब यहाँ पे हमारे माइंड पे आ रहा होगा कि बनी बनाई हमें क्लासेस मिल रही हैं तो हम इनको यूज कर लेते हैं, सीएसएस को हम जंप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। रीजन कि सीएसएस के अंदर हमें बेसिक्स एट्रीब्यूट्स सीखने मिलते हैं, राइट। अब बूटस्ट्रैप के अंदर अगर हम एडवांस में जाते हैं, अगर कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है हमको, तो कस्टमाइजेशन एडिटिंग करनी है हमको, क्योंकि वहां पे प्री डिफाइंड क्लासेस है। उनके अलावा अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो आपको बेसिक्स की नॉलेज जरूर चाहिए। एडवांस पॉइंट पे कंपनीज बूटस्ट्रैप के अंदर ही टेम्पलेट डिजाइन करवाती हैं, बट सीएसएस वहां पे कस्टमाइजेशन के लिए हमें जरूर चाहिए होती है, क्योंकि एट्रीब्यूट की नॉलेज यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे नहीं मिलती। My next point is jQuery. jQuery is a lightweighted, writeless, do more JavaScript library. The purpose of jQuery is to make it much easier to use JavaScript on your website. अब यहाँ पे jQuery भी क्या है, आपकी अगेन एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। यहाँ पे क्या होता है कि jQuery के अंदर आपका जो टास्क है, जो लाइन ऑफ कोड है, बहुत कम हो जाता है। बहुत इफेक्टिव वे के अंदर आप अपना इफेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर पाते हैं बहुत मिनिमम लाइन के अंदर, क्योंकि इसकी टैग लाइन है राइट लेस डू मोर, बहुत ज्यादा काम करती है मिनिमम लाइन कोड के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम इनको यूज कर रहे हैं। jQuery को अगर आपने यूज करना है तो अगेन इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। रिमेंबर, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट तक हमें कोई भी कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, हमें सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। और हमें अगर बूटस्ट्रैप पे काम करना है, jQuery पे काम करना है, तो हमें इनकी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को डाउनलोड करके प्लग करना पड़ेगा, फिर हम काम करेंगे। नेक्स्ट वन, एक बेसिक एग्जांपल आपको कोड दिखाया है जावास्क्रिप्ट वर्सेस jQuery कोड के अंदर। अगर रन टाइम के अंदर में कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल एक हेडिंग रन टाइम क्रिएट करनी है, एक क्लिक पे मेरे को रन टाइम पे एक हेडिंग क्रिएट करनी है,
तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 3 लाइन का कोड हमको लिखना पड़ेगा, और अगर उसी चीज को अगर मैं jQuery के अंदर काम करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर ये कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो सी मिनिमम लाइन के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा आउटपुट यहाँ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट वन, AJAX। AJAX stand for asynchronization JavaScript and XML. AJAX is a technique to creating better, faster, and more interactive web applications with the help of XML, HTML, CS, and JavaScript. अब AJAX का क्या होता है काम? AJAX का काम, AJAX allow web pages to update, exchanging data with a web server behind the scene. अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड के अंदर अपना रोल सारा का सारा करती है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक के अंदर आपने किसी पिक्चर के ऊपर कमेंट किया, तो जब आप कमेंट करते हैं तो वो सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है, राइट? बट आपका सर्वर पे जब जाके स्टोर हो रहा है तो वो आपका पेज रीलोड नहीं होता है। मीन अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज, request and response from a server after the page has loaded, send data to server in the background. बैकग्राउंड के अंदर आपका यहाँ पे डेटा एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छा इंटरफेस बनाना है, बैकग्राउंड के अंदर पार्शियल अपलोडिंग करनी है, तो यहाँ पे आप एजेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने अब किसी भी तरह की वैल्यूज को स्टोर करना है, राइट, क्योंकि आपने इतना कुछ इंटरफेस बना लिया, सपोज आपने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, तो उसकी वैल्यूज कहाँ स्टोर होंगी? तो कहीं कोई ना कोई मेरे को आरडीबी चाहिए। फॉर एग्जांपल MySQL, SQL सर्वर, Oracle, MS Excel, इस तरह की वैल्यूज को अगर इस तरह के एक आरडीबी में सॉफ्टवेयर में से कोई भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात की किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, सॉरी आरडीबी में के अंदर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ किसी भी सॉफ्ट बैकएंड आरडीबी में इसको फॉलो करके अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। हमको यहाँ पे एक आरडीबी में चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमको जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, AJAX, RDBMS, इन टूल्स का सीखना जरूरी है। उसके बाद ही हम यहाँ पे PHP की हेल्प से इन सबको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब PHP स्क्रिप्टिंग, अगर आपने PHP पे काम करना है तो PHP की स्क्रिप्टिंग यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट वन, PHP जो मेन टैग है आपका, जो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड वन, शॉर्ट टैग, ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता है, इसको ऑन करना पड़ता है PHP INI फाइल के अंदर। और थर्ड वन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज इक्वल टू PHP। इसके बीच में आप कोई सा भी PHP का कोड कर सकते हैं, आप इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम फर्स्ट वन को फॉलो करें। सेम PHP कोड को एक HTML फाइल, एक HTML कोड के साथ प्लग करके दिखाया गया है। इसकी एक्सटेंशन डॉट PHP आपकी रहेगी। इको आपका एक आउटपुट फंक्शन है जो कि ब्राउजर के ऊपर आउटपुट देगा, लाइक केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से आपका आउटपुट आएगा, राइट? नेक्स्ट, अब कोडिंग लेवल फॉर द PHP डेवलपमेंट। कोडिंग लेवल कौन कौन से हैं? क्या एक ही लेवल होता है? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, ये है बेसिक। भले आप PHP में ना भी आए, ये आपको जरूरी है फॉर द वेब डेवलपमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि कुछ सेक्शन कॉमन होता है और कुछ सेक्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन है। तो क्लाइंट साइड टूल्स और HTML, ये आपको जरूरी सीखना चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि मेरे को PHP यूज करनी है, JSP यूज करनी है, कि Ruby यूज करनी है, पाइथन यूज करनी है, और उसमें से भी PHP क्यों यूज करनी है, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है कोर PHP प्लस CSS। फर्स्ट लेवल आपका ये होता है कोर PHP एंड एडवांस PHP। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, लाइब्रेरी हैंडलिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करते हैं, और एडवांस PHP के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपनी लाइब्रेरी बना लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तीन फ्रेमवर्क, बहुत सारी कंपनीज हैं कि अगर स्टूडेंट ने कोर PHP कर रखी है, एडवांस PHP कर रखी है, बट फ्रेमवर्क नहीं कर रखा है, तो वहां पे उनको वो सीखना पड़ता है। तो डिमांड होती है फ्रेमवर्क की, राइट? जैसे मैंने स्पिक क्लियर की बात की थी, स्पिक क्लियर जो .com है, वो कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप की गई है हमारी टीम से। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क के अंदर जो होगा आपका MVC आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। उसी कोड को कैटेगराइज करके हम लोग यहाँ पे कोड को डिवाइड करके लिखते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट एक कैटेगरी होती है CMS टूल्स, लाइक वर्डप्रेस, जूमला, Drupal। तो इन टूल्स की हेल्प के अंदर क्या होता है कि मिनिमम लाइन ऑफ कोड होता है।
सॉरी कोड यहाँ पे बहुत कम करना होता है। सपोज आपने एक 100 लाइन ऑफ कोड कर रहे हैं पीएचपी के अंदर डेवलप करके कोड एडवांस या फ्रेमवर्क, बट सीएमएस के अंदर क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना है, प्लग एंड प्ले। लाइक आपने प्लग डाउनलोड किया, थीम को डाउनलोड किया, वहां पे इंटरफेस आपको डिजाइन करना पड़ रहा है, वहां पे टेम्पलेट कहाँ पे सीएसएस एंड जेक्वेरी बूटस्ट्रैप की हेल्प से आपको टेम्पलेट जनरेट करना पड़ रहा है। बट सीएमएस के अंदर क्या होगा, टेम्पलेट आपको प्री डिफाइन मिलेंगे, जस्ट डाउनलोड एंड मेन्यू ऑप्शंस आपको कर रहे हैं, सिर्फ आपने कंटेंट डालना है। आप कह सकते हैं कि सीएमएस टूल को एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सीएमएस के अंदर बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, बहुत डिमांड है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क, PHP framework. PHP framework is based on the MVC architecture. MVC architecture. MVC architecture that is separate an application into three main logic components: a model, view, and controller. These components are built to handle specified development aspects of an application. Like model is responsible for maintaining database, maintaining data, sorry, and view is responsible for displaying data to end user, and controller is interaction between model and view. The main aim of MVC architecture is separate to business logic and application data from the user interface. यहाँ पे सिर्फ आपके कोड को कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है लॉजिक्स, बिजनेस लॉजिक्स के अंदर, एप्लीकेशन डेटा के अंदर और यूजर इंटरफेस के अंदर, राइट। मार्केट के अंदर कौन कौन से फ्रेमवर्क्स टॉप में चल रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक लारावेल, कोऑर्डिनेटर, केक पीएचपी, फ्यूज, जेडन फ्रेमवर्क, फिल्म फ्रेमवर्क, ये आपके फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। तो इन फ्रेमवर्क में से टॉप फ्रेमवर्क्स में आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कोडिंग सैंपल के अंदर CRUD ऑपरेशंस का कोडिंग डिफरेंस आपको यहाँ पे करके दिखाया है। कोर पीएचपी के अंदर अगर आप करते हैं, CRUD मींस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये डेटाबेस ऑपरेशन है। लाइक आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, रीड करना है, तो इसके अंदर आपने अगर CRUD ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे आप कोर के अंदर कैसे करेंगे, एडवांस के अंदर कैसे करेंगे, फ्रेमवर्क के अंदर कैसे करेंगे, तीनों का कोड मैंने आपको दिखाया है। तो कोर के अंदर अगर हम जाते हैं तो सिंपल मैंने लिखा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब आपकी एक माइस्क्ल की एक स्टेटमेंट आपने लिख दी है, इंसर्ट अपडेट, किसी की भी लिखी है, CRUD ऑपरेशन में से कोई सी भी स्टेटमेंट हम डेवलप कर सकते हैं। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी आपका यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन है, इसको आपने क्वेरी के अंदर पुट किया और वो क्वेरी आपकी हो जाएगी और रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी चीज को अगर एडवांस पीएचपी के अंदर करना हो तो यहाँ पे विद प्रूफ्स लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज अंडरलाइन करना चाहूंगा कि सिर्फ प्रूफ्स कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ के मत छोड़िए, प्रूफ्स की हेल्प से आप अपनी लाइब्रेरीज बनाएंगे। अब आप लाइब्रेरीज बनाएंगे तो उसका ये रहेगा, जो रूटीन में हमें जो फंक्शंस हैं वो बार बार हमें नहीं बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर उन्हीं फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट टेबल नेम उसी चीज को कन्वर्ट किया है अपनी लाइब्रेरी के अंदर, तो ये जो माई लिब है ये मेरी अपनी लाइब्रेरी है, राइट। तो इसके अंदर यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे सेट करके टेबल नेम, कॉलम वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया और इंसर्ट के अंदर उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, असेंबल कर दिया। अब यहाँ पे उसी चीज को अगर हम फ्रेमवर्क के अंदर करें तो यहाँ पे दिस लास्ट स्टेटमेंट है $दिस db इंसर्ट प्रोडक्ट कॉमा डेटा, ये आपका क्या होता है, ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन है जो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क के अंदर मैंने CI का मतलब कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आप इसी फंक्शन की हेल्प से अपना रिकॉर्ड स्टोर कर पाते। तो यहाँ पे अगर आप में से किसी ने कोर पीएचपी की नहीं है तो आप कोर पीएचपी से स्टार्ट करिए, और अगर किसी ने पीएचपी स्टार्ट कर लिया तो गो फॉर एडवांस पीएचपी, और अगर आपको लाइब्रेरी भी बनानी आती है तो आप क्या करेंगे, फ्रेमवर्क में जाएंगे। यहाँ पे एडवांस पीएचपी करना जरूरी है, रूट कॉन्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइब्रेरी बना लेते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल समझना बहुत आसान हो जाता है, और इंडस्ट्री जो है आपकी वो विदाउट फ्रेमवर्क PHP को एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। नेक्स्ट वन, CMS tool. CMS stand for the content management system.
CMS is software that tools that allow you to create, edit and publish content. मतलब अब यहाँ पे क्या है कि एक अगर नॉन टेक्निकल पर्सन भी अगर एक वेबसाइट बनाना चाहता है, सपोज एक डॉक्टर एक वेबसाइट बनाना चाहता है और वो खुद बनाना चाहता है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, जस्ट एक वर्डप्रेस डाउनलोड करना चाहिए और XAMPP की हेल्प से वहां पे उसको कॉन्फ़िगर करके और यहाँ पे सिर्फ अपना कंटेंट मेंशन करना है और दैट्स इट। तो एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी CMS टूल के अंदर काम कर सकता है और CMS टूल की बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। तो इनमें हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल, मेजेंटो। तो इनमें से आपके किसी भी टूल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसी के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें कि मार्केट के अंदर कौन सा CMS तो हर एक की अपनी अपनी प्राइस रेंज होती है। तो विंडो होस्टिंग थोड़ी सी कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू लिनक्स होस्टिंग, और हमारे पास प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि हम एक मिनिमम प्राइस, क्योंकि PHP वेबसाइट लिनक्स सर्वर पे भी होस्ट हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिनक्स सर्वर को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो हमको यहाँ पे वेब होस्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेब स्पेस परचेज करना पड़ेगा जिसके प्राइसिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डोमेन बाय करना पड़ेगा और जो वेबसाइट है डोमेन से उस वेबसाइट को लिंकअप करना पड़ेगा और उसके बाद वो वेबसाइट क्या होगी, यूजर्स तक पहुंच जाएगी। तो सपोज आप एक कोई सी भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं, सपोज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स शेयर करने हैं या कोई और कंटेंट शेयर करना है, कोई एक सर्विस बनानी है अपने कॉलेज के लिए, राइट। तो उस तरह से आप एक एक फैक्टर के लिए कोई सर्विस बनानी है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे एक वेबसाइट बनाइए और उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम लोगों ने यहाँ पे PHP कर ली है, सपोज मैंने PHP कर ली है, तो अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ। कंपनी क्या करती है कि आपको अपग्रेड करवाने हैं, एक इंजीनियर को अपग्रेड करना, तो उसको क्या बोलेंगे, या तो वो बोलेंगे एंगुलर कर लीजिए, Node.js कर लीजिए, आयनिक कर लीजिए, React नेटिव कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनके बाद आप मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं। और मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के अंदर API फॉर्म के अंदर ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमको चाहिए होती है। तो अगर आप बेसिक स्टेप 1 वेब एप्लीकेशन है, स्टेप 2 मोबाइल एप्लीकेशन है, तो स्टेप 1 को अगर आप क्लियर करके जाते हैं तो आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर आप फ्यूचर में जाना चाहेंगे तो वो वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप रहती है, राइट। अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे मैं सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करूंगा, मैं ओवरऑल बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास फ्रीलांसिंग ऑप्शन है। अच्छा, एक और पॉइंट की फ्रीलांसिंग ऑप्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ PHP के लिए, बट PHP के अंदर क्योंकि परसेंटेज 78.9% मार्केट में चल रही है, इसलिए यहाँ पे हर एक कंट्री के अंदर फ्रीलांसिंग बहुत सारे अवेलेबल। अगर मैंने स्टार्टिंग में बात की थी अपवर्क का, मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, 20 बिलियन रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स वहां पे रजिस्टर्ड है। तो इतने बड़े यूजर वहां पे, फ्रीलांसर्स वहां पे जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, राइट। अब कनाडा के अंदर सपोज आप में से कुछ लोग जाना चाहते होंगे कनाडा, तो सपोज मैंने एक लैंग्वेज कर ली, अब पता लगा वहां पे तो कनाडा में चल ही नहीं रही है, तो कनाडा के अंदर 45% PHP चल रही है, न्यूजीलैंड के अंदर 50% चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 51% चल रही है, इंडिया की अगर हम बात करें 47% चल रही है।
एक डेटा एनालिजी एक वेबसाइट है जहाँ पे कंट्री वाइज आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना परसेंट वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चल रही है। और यहाँ पे इनकम की अगर बात करें फ्रीलांसिंग के अंदर तो $50,000 टू 1.5 लाख डॉलर आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांस। करेक्ट। तो ये यहाँ पे इतना जो था वो पीएचपी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पीएचपी मार्केट के अंदर क्यों इतना स्टैंड कर रही है, इजी टू लर्न है, फ्रीली अवेलेबल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो लाइन ऑफ कोड है वो बहुत मिनिमम करना पड़ता है। तो यहाँ पे पीएचपी के अंदर बहुत सारी वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बोला कि जिस टूल की हेल्प से हम लोग जुड़े हैं, जो आपके पास लिंक आया होगा आप चेक करिए कि .php लिखा हुआ है उसके अंदर। दैट मीन्स आज के अंदर भी हम जो इवेंट जो हमारा हो रहा है उसके अंदर पीएचपी कहीं ना कहीं काम कर रही है। राइट। ऑफर वर्चुअल क्लासरूम। अब यहाँ पे कोविड यहाँ पे स्पेक आप ऑफर कर रहा है वर्चुअल क्लासरूम। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो 60 और 240 आवर्स बेसिस पे हैं। 2 कोर्सेज हैं यहाँ पे, एडवांस इन पीएचपी फ्रेमवर्क विद सीएमएस टूल। नेक्स्ट इज आयनिक, एंगुलर एंड नोड.js। ये आपकी हाइब्रिड एप्लीकेशन है। कोर्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम speakindia.com। कोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आईटी चंडीगढ़। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कोर्सेज के अंदर जो हम लोग यहाँ पे स्पेक के अंदर करवाते हैं। हमारे पास जो कोर्सेज रहेंगे पीएचपी विद फ्रेमवर्क एंड सीएमएस टूल, इसके अंदर HTML, CSS, SAS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Bootstrap, Core, Advanced, working with files and directory, like this state management, database connectivity, AJAX, JSON, namespace, web service, API, exception handling, framework, case, और कोऑर्डिनेटर, कोई सा भी एक फ्रेमवर्क एंड सीएमएस टूल लाइक वर्डप्रेस, वेब होस्टिंग। ये सारा पैकेज हमारा एक कोर्स है पीएचपी विद फ्रेमवर्क एंड सीएमएस टूल, उसमें हम करवाते हैं। नेक्स्ट, हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन टूल। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे मेंबर लाइक एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग iOS फोन यूज कर रहे होंगे, एप्पल फोन यूज कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो नेटिव एप्लीकेशंस के ऊपर आप जाना चाहते हैं, लाइक सपोज एंड्रॉयड पे जाते हैं, तो एंड्रॉयड के अंदर जो एप्लीकेशन डेवलप होगी वो iOS पे नहीं चलेगी। iOS के लिए आपको अलग से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन के अंदर आपका क्या होगा, आप एक ही कोड को दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो जो ट्रेंड है, जो इंडस्ट्री मांग रही है, वो हाइब्रिड एप्लीकेशन मांग रही है। आप में से किसी को भी अगर मोबाइल एप्लीकेशन में अगर जाना है तो वो आयनिक, एंगुलर और नोड.js ऑप्शंस को आप कर सकते हैं। Courses again download from the speakindia.com. Next, quick virtual classroom. Live interaction class will be held. No recording will be played. यहाँ पे हम लोग जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं। कोई रिकॉर्डिंग आपकी नहीं चलती है, कोई पीपीटी नहीं चलती है। यहाँ पे हम इजीली क्या होता है कि हम किसी भी स्टूडेंट के रिमोटली स्टूडेंट के सिस्टम को हम एक्सेस कर लेते हैं, और अगर कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है कोड के अंदर तो हम वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन जो टूल है हम यूज कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल विल बी शेयर्ड विद ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स इंटरेस्टेड इन लाइव प्रोजेक्ट विल बी अलॉटेड विद प्रोजेक्ट थ्रू द वर्चुअल क्लासरूम। पिक virtual classroom equipped with multimedia sharing, integrated test engine, friendly feedback, and attention indicator feature will be announced in the experience. In the virtual classroom, we can check at any time attentive and non-attentive। यहाँ पे क्या हमारे पास एक important point है कि हम किसी भी टाइम पे स्टूडेंट का वो अटेंटिव है या नॉन अटेंटिव है, सपोज वर्चुअल क्लासरूम लगाइएगा हमको एक छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम आप करेंगे कि आप लोग में से कोई सा मेंबर कितने परसेंट वहां पे वो चेक कर रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। वहां पे हमारे पास हर एक चीज की डिटेल आती है इसके लिए, राइट। लास्ट वन इज वेबिनार होस्ट बाय स्पेक। हम लोग यहाँ पे जो आपका आप कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस्क you, if anyone have any query, please raise your hand or reconnect me later. Here I am sharing my detail also. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप मेरे को रेज हैंड करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको मेरी डिटेल भी शेयर है, काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप बाद में जुड़ सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर
Thank you so much. Over to you, Deepa. Thank you, Gusharan sir. Now I would request the attendees, अगर किसी के पास कोई query है, वो please raise their hand. There is a button of, you can, as you can see, there is a hand button. You can click it and you can raise your hand, and then we would love to answer your queries. Anybody who wants to ask any question? Okay. I would like to tell you one thing more. You can also visit our Facebook account, that is SPIC Training. You can visit our Facebook account and you can download the details of all our curriculum and SPIC training methodologies. And tomorrow we're going to have a webinar on machine learning and Python. Okay. And people who are interested, they can visit our Facebook at SPIC Training, and they can download the attendee link from there. And you can also download your certificate for attending all the webinars, but that would be available from 3rd of June. That means day after tomorrow. आपको SPIC website पे जाना है, www.spicindia.com, and you need to put in your registered email ID for the webinar as user ID and registered mobile number as a password, and then you can download your webinar certificate. Now, this is the detail which is on your screen. You can note it down. In case you have any query, you can connect us. You can email it to us. Okay. Somebody is there. I think there's Nana. Nana, there is a Nana, one attendee with the name of Nana. I think she has a query. Can you unmute her? Gusharan sir? And Kriti Manhas. Amna sir, are you here? Nana is already unmuted. Yeah. Nana, do you have any question? Hello? Nana, am I audible? Go for the next one here. There is someone called Kriti. Anybody got a question? We are here. Shubham. Hello? Hello? Just to ask you, Yuri. I can hear you. Nana. Yes. सारों ने तो बंद कर दिया, मैंने चला कब सर गया था. Nana, you have any question? Tell me, Nana, you have any question? Nana, मैं कोर्ट में बैठ गया हूँ. मैंने कहा सर, no, I have no any question. उसको I think मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और अभी भी उसको वो बोल नहीं रहा, अभी भी है क्वेश्चन. आ रही आवाज? अब नहीं आ रही. Nana. Hello. Okay, I think we can unmute. I think we can mute her. She doesn't have any question. Kriti. Kriti is not there. Cindy, we have someone called Shubham. Acha, there is Harpreet Kaur, Amlan. She has a query. Yeah, Harpreet. Yeah, Harpreet, can you hear us? Yes, sir. Yeah. I have one query that can faculty members also do the training with your institute? Yes, we can do that. You are from which institute? GCG 11.
Yes, yes, we do have. And you are doing, you're pursuing your BCA or BSc IT? No, sir, I am faculty member in GC Okay, you're a faculty. Yes. Yes, we can do that because since you are also part of Chandigarh administration, we are also part of Chandigarh administration, so we can easily work it out. So do we have to pay for that, or like for faculty members it is free of cost? No, we can work it out, Harpreet ji. I'll speak to Pradeep Walia ji regarding this, and then Okay. either we have to send a proposal, because normally what happens is that we charge very minimum amount for the training program. So Okay. we'll see how we can arrange it. We'll speak to Mr. Pradeep Wali, and then we can work it out. I'll get in touch Sure, with sir. That will be good for me. you. Yeah. And you can also attend our tomorrow's webinar on machine learning and Machine Python. learning, yes. Yeah. In Python. Okay. Thank you. There is another query on the mic. Mr. Shubham, Shubham was there. Shubham is not there. We have unmuted Not there. him, but, we have something called Ishmita. Hello. Hello. Yes. Yes. Is it Mr. Shubham? Shubham is not there. This is Karandeep. Yeah, Mr. Karan. Mr. Karandeep, can you hear me? Karandeep Kaur. Miss Karandeep? Hello? Ishmita. Yes. This is Ishmita. Hi, sir. I'm Ishmita. Yeah, Shmita, tell me. Sir, what is the difference between HTML4 and HTML5? इश्मिता HTML5 के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं. लाइक HTML4 के अंदर जैसे आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, राइट, उसके अंदर आपने DOB इनपुट लेना है, तो आपको स्लैश लगा के या आपको अलग अलग डेट्स और मंथ्स और ईयर्स अलग अलग मेंशन करने पड़ेंगे. बट यहाँ पे कुछ नए कंट्रोल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, लाइक डेट, कैलेंडर, टाइम, ईमेल. तो वहां पे क्या है कि इनबिल्ट वेरिएशंस आ चुकी हैं. लाइक आपने अगर रिक्वायर्ड लिख दिया वहां पे तो वो एंट्री ले लेगा, और अगर आपने वहां पे डेट लिया तो वो वहां पे कैलेंडर शो करेगा, राइट. तो ऐसे जो ऑडियो, वीडियो, टैग्स, वहां पे लोकल स्टोरेज, बहुत अलग अलग फीचर्स यहाँ पे HTML5 में आते हैं. ओके सर, एक्चुअली HTML4 में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूज करते हैं, बट HTML5 में स्ट्रॉन्ग, इनर स्क्रिप्ट, एम्फसाइज यूज करते हैं. ये क्यों? पर काम दोनों का एक ही है. देखिए यहाँ पे अलग अलग टैग्स आए हैं, कुछ टैग्स को रिमूव कर दिया गया. सपोज डेल को स्ट्राइक कर दिया गया, राइट. काम तो वही है ना, ठीक है. तो वो वर्जन के अंदर अपडेशंस आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको टैग्स को रिमूव कर दिया गया. वो टैग्स भी वर्क करते हैं. अगर आप वहां पे बोल्ड भी यूज करेंगे तब भी वो वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग करेंगे तब भी वही सेम आउटपुट देगा. तो डेफिनेशन सेम है टैग्स की. ओके सर, थैंक यू. Okay, anybody else? Mr. Amlan, anybody else? No. Has anybody raised any hand? No, it's all. Yeah, okay. And before we end this session, I would like to share something very important. Now, if you look at any program or a training program, the most important part of the training program is your curriculum. Whether the curriculum you're gonna do is industry relevant or not. Let me share you that as far as SPIC is concerned, since we are working closely with the startup companies, with the IT companies, since we are based out in Chandigarh Technology Park, and we are also co-developer of Chandigarh Technology Park. So we have a very strong interface with all the IT companies. So whatever curriculum हम बनाते हैं, हम design करते हैं, we design in consultation with all the IT companies. So we keep on changing our curriculum as per the industry requirement. And जो student SPIC आता है and somebody who registered with us for any training program, that particular student also get an opportunity to work with the startup companies, because as I told you, we have an incubation center there
जहाँ पे we have very innovative startup companies who are working on very very innovative solutions. बहुत and they adopt best practices for development of application, for website development, or any development work. So these trainees who registered with us also get an opportunity to work with them, and they get a lot of exposure. You're getting my point? So the point here is that apart from training, whatever you are learning, are you also getting an exposure or not? So we give exposure to our trainees, and you also get to learn the latest curriculum, which is industry relevant. और आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक तो आपको प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट मिलता है एंड एक आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, which is issued by Chandigarh administration. Okay. So Amlan, Mr. Guri, I think we should end the session. I think if there is any और अगर कोई क्वेरी है तो we can take it, otherwise we can end it, because I think attendees are still there. प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो. Mr. Mohit Amlan, Mohit is there. Mohit is there. Mohit is there. What? Yes, Mohit. जो जैम्प होता है वो होस्टिंग के लिए यूज होता है. हेलो Mohit, unmute yourself. Mohit, kindly repeat your question please. सर जैम्प होस्टिंग के लिए यूज होता है. ZAMP सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली लोकल होस्टिंग, आपने लोकल पे आपने PHP MySQL पे काम करना है तो उसके लिए आपको लोकल डेवलपमेंट के लिए चाहिए. वेब होस्ट कर रहा है तो आपको स्पेस परचेज करना पड़ेगा. सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप अपने किसी दूसरी कंट्री के अंदर या किसी सिटी के अंदर अपने फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं तो वहां पे आपको वेब होस्ट करनी पड़ेगी. ZAMP को यूज नहीं करना. ZAMP बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर पैकेज है जहाँ पे PHP लाइब्रेरी, MySQL, अपाचे ये सब चीजें देता है लोकल डेवलपमेंट के लिए. सर लोकल होस्ट का फिर रोल क्या हुआ? सॉरी, लोकल होस्ट का रोल क्या है सर इसमें? लोकल होस्ट का क्या रोल है? अगर आपको एक वेबसाइट चलानी है तो वो सर्वर स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही चलेगी ना. तो लोकल होस्ट आपका सर्वर स्क्रिप्टिंग के लिए आपका लोकल होस्ट यूज करेंगे. आप जैसे देखते हैं www.gmail.com, तो जीमेल क्या है? डोमेन है, राइट. वो वेब स्पेस पे आपको परचेज करना पड़ेगा, डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा. अब आपने लोकल पे आपने चलाना है तो आप डोमेन तो परचेज नहीं करोगे ना. आप लोकल डेवलपमेंट के अंदर तो वहां पे अगर आपकी जितनी भी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वहां पे जो यूआरएल बनता है वो विद हेल्प ऑफ लोकल होस्ट / योर फोल्डर नेम, राइट. लेटर ऑन उसको आप जब आपने वेबसाइट्स रेडी करनी है तो आप जब उनको सर्वर पे डालते हैं तो वहां पे आपकी वो डोमेन नेम के साथ लिंकअप हो जाती है. ओके सर. अगर सर हमने PHP का यूज करना है तो लोकल होस्ट चाहिए ही चाहिए. आपको सिर्फ एक ZAMP की सर्विस ऑन करनी पड़ती है. वो लोकल होस्ट अपने आप बना देता है. आपको कुछ उसके लिए अलग नहीं करना है. जस्ट आपको जो ZAMP सॉफ्टवेयर पैकेज आपको रिकमेंड किया है आपको उसको उसकी सर्विस को एक्टिव करना है. और उसके बाद आप वहां पे उसके अंदर एक फोल्डर होता है htdocs करके. ZAMP के अंदर htdoc होता है. उसके अंदर आप अपने फाइल्स को जब डालते हैं तो वहां पे लोकल होस्ट / योर फोल्डर नेम. तो आप इतना करोगे क्योंकि जो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है उसको आप C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव से नहीं चला सकते. उसको आप सर्वर की हेल्प से चलाना पड़ेगा. तो लोकल के लिए आपको अपाचे वगैरह ये सारी सर्विसेज ऑन करनी पड़ेगी. तो ZAMP आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज है. अदरवाइज आपको अपाचे, MySQL, PHP अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ेंगे. तो सबसे इजीएस्ट वे आपको मैंने यहाँ पे बताई. ओके, थैंक यू सर. There is Tanya Singh also, I guess. Yes, Tanya, you can speak. Yeah, Tanya. Yes, Tanya, you can speak. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I'm a student and I'm currently pursuing BCA. And the thing you were explaining about the freelancing thing, me and my father just recently started the freelancing perspective, and we are working with PHP and with MySQL database. And the software we are using is WAMP.
So I wanted to ask that, do I need to change the software for this? Like you were telling about us the XAMPP software, which it's been operating on. जी, देखिए आपको your name is Tanya. तानिया। तानिया, आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है डेवलपमेंट के अंदर तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए बच्चे को प्लीज, इको कर रही साउंड। तानिया, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप हाँ जी। विंडो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वैम इज ओके फॉर यू, राइट? बट अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करूंगी, लिनक्स में जाऊंगी, तो आप XAMPP अभी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है। So, like this project I started with my father, like he also has a very detailed information in like various softwares like ASP and .NET again and all these. So do I need to learn any other language other than PHP and MySQL? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा कि आप गूगल करो, और जब डेटा आपको 78.9% PHP फॉलो की जा रही है, तो आपको किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, बेटर है कि आप अगर कोर PHP कर रहे हैं तो आप एडवांस पे चले जाइए, एडवांस कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क पे चले जाइए। Okay, so that means like I'm currently doing the core PHP, so I need to do the advanced and the framework. Yes. All right. Thank you, sir. Any other? Okay, I think in case we are about to close, if anybody has any query, can raise a hand or send us a message. Gursharan. Sir. Gursharan, we are having a message query from Anushka. She said we already learned CMS tool like WordPress. Then should we learn PHP language also? Yes. जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि सर CMS के अंदर क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर पाएंगे, बट वहां पे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो आपको कोर PHP, एडवांस PHP पे जाना चाहिए, क्योंकि आपका बेस वहीं पे बनता है। Okay, I think you don't have any other query. We should stop. Amran, कोई और है? Any other question? No other questions. So we can stop now. We can end the session, and tomorrow we can meet again. I think there is a message. There is an app for freelancing. Manvi Behel. Mr. Gursharan? Yes, sir. Manvi Behel has asked, is there any app for freelancing? यस सर, ये जो आपकी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, जो अपवर्क है, फाइबर है, इनकी एप्स भी अवेलेबल होती हैं, तो आप ऐप प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं। ठीक है, all right. So I think we should end the webinar, and we will meet. We'll meet tomorrow again. Tomorrow we have a webinar on machine learning and Python. So we'll meet tomorrow at 12, and people who are interested, students who are interested, they can visit our Facebook account, SPIC Training, and they can take the the invitation link for tomorrow's webinar from there. Thank you so much for being here, and good day.